Today's subject is work and energy. We will see in this lecture about few things like what is work energy theorem. It is a very popular topic when you are this age. Work energy theorem. Then we will talk about conservative and non-conservative force. That is a very important discussion because many people have amazingly difficult time to understand these things. What do we mean by conservation of forces and what do we mean by non-conservation of forces? And then we will talk about potential energy, which we have given you an amazing idea in my previous lecture, in my previous video, where we have discussed about philosophy of energy. तो वहाँ मैंने सारे कुछ खोल के बताया है कि what is the meaning of kinetic energy, what is the meaning of conservation of energy and so on. Here we will see more mathematically what do we mean by those terms and how we translate those ideas in more mathematical language, more consistent framework. Well, and then we will talk about these laws of conservation, what we can in terms of energy, how we can form this law of conservation or conservation of energy. So hi guys, this is Saddam Leonardo Cap and you are watching my channel. This is the physics tutorial and I hope you are liking it. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. Well, one more thing is that in a description box, whatever I am discussing for every lectures, मैंने वहाँ क्या कंटेंट बना दिया है. कंटेंट इज विद टाइम, तो आप बस उस टाइमिंग में बस क्लिक करो और आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगी कौन सी टॉपिक किस टाइम पे शुरू हो रहा है. सो इट मे हैपन्स दैट you don't like some of the topics, then you can skip those topics and you can just go there. So that's all. So let us start our topic today. Previously we had discussed about Newton's equation. For an example, the Newton's second law, which was F is equal to ma. Using this law, it's actually giving us the trajectory of any particle. Means we can predict, using this law we can predict the motion and the position of any object at particular instant of time. Then okay, you can ask that, okay, this law is very amazing, it's worked pretty well, then why do we need to learn additional concept and what does it mean to learn those concepts? For an example, why do we understand this work and energy? Because when we know at what instant of time where the particle will be, then it's enough. We know the velocity, we know all these things. But one can ask that, okay यार देखो क्या होता है कि एनर्जी तो सारे पार्टिकल्स में होते हैं, ठीक है. सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन. But we have to dig more deeper. Why do we understand it? In my introduction of this subject, there are four fundamental forces that exist in nature. क्या है? चार forces जो हैं वो हमारे क्या है? Fundamental forces हैं जो हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आज जो दुनिया बनी है वो ऐसे आपको दिख रही है. अदरवाइज अगर एक फोर्स को आप निकाल दो, then you cannot build this kind of universe. These forces are, one is called gravitational force, another is called electrostatic force, or we say electromagnetic force, EMF. Okay, electromagnetic force. Another is called strong force, and the last one is weak force. These are the four categories of the forces: GF, EMF, strong force, SF, and weak force, WF. The nature of this force, we will not say anything about the strong and weak force because up to this level we only deal with this gravitational electromagnetic force. These force, I can only say that these exist inside the nucleus. Okay, there is an atom and there is a nucleus inside of it. So ये जो forces हैं वो क्या करते हैं? Inside of nucleus के अंदर ये करते हैं, काम करते हैं. So we will not try to understand this kind of force because it's completely out of the level which we are discussing. Okay. Now our main focus is that gravitational force and electromagnetic force. How are these force? तो अब तक जो हमने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ के बारे में, हमने बस एक चीज लिया था कि एवरीथिंग इज इन फ्री फॉल कंडीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्या लग रही है? एक
फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड mg, जो अर्थ मेरे को लगा रहा है mg. It's kind of a uniform force and we didn't care about what is the nature of force and so on. तो कहने का मतलब G is your constant, M is your constant, तो F is kind of a constant force. और इस तरह से हमने ये देखा कि सपोज आप कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो या कोई कांस्टेंट फोर्स बाय अर्थ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो उसकी मोशन कैसे होगी, उसकी पोजीशन किस तरह से होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने हर चीज को फिगर आउट किया. इफ वी फाउंड आउट दिस थिंग्स. So you may also say that, okay, you have told 4 forces. What about the friction force? What about the normal force? As I have told you that friction force is a phenomenological force. What is the meaning of it? It's kind of an effect. और मैंने ये बताया था कि जो friction force होता है वो phenomenological force है. And if you don't understand this term, please go to the link I have given. I button पे आप click करो and you will get what is the meaning of these things. Now normal force is kind of a force which because of the surface. तो अगर कहीं surface नहीं है तो normal force नहीं होगी. So it's kind of a thing that it's kind of an effect of forces. So we don't consider those kind of thing because the fundamental forces are 4 forces, that is GF, EMF, strong force and weak force. Now to understand what does GF and EMF look like, तो आपको पता ही होगा कि F इज इक्वल टू, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हो आप, 2 ऑब्जेक्ट है उनके बीच का सेपरेशन अगर R है, क्या है वो R है, मे बी ये मास M है, ये M है, और इनके बीच अगर ग्रेविटी फोर्स लगेगा तो हम उसे दिखा सकते हैं F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर. और अगर इस पे आपको चार्जेस दे दो, मे बी इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज Q है, तो ये बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेट को हटा देते हैं अभी, तो यहां आएगा K Q बाई R स्क्वायर. तो दोनों का सिर्फ न्यूमरेटर में समथिंग इज डिफरेंट बट डिनोमिनेटर इज सेम. सो वी कैन कैटेगराइज दिस फोर्सेस लाइक F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, और लेट्स से वी कैन कॉल एट A बाई R स्क्वायर. A इज सम कांस्टेंट बिकॉज आपकी G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट. Similarly, K is some constant, Q is constant, that is charge, and another Q is constant. So force जो हो गई आपकी constant over R square. Now you can see here the interesting fact कि force आपका जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. तो आप बोलोगे इसमें बुरा क्या है, पोजीशन पे डिपेंड करे, क्या फर्क पड़ता है? Yes, obviously इसमें कोई बुराई नहीं है. तो these are the forces. बट न्यूटन्स लॉ को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं. F इज इक्वल टू एम ए, और A को हम क्या लिख सकते हैं, dv ओवर dt. और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अगर लिखूंगा तो d बाई डी टी ऑफ dx ओवर dt, विच इज नथिंग बट m d2x ओवर dt स्क्वायर. तो आप देख रहे हो कि जो राइट हैंड साइड है दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. लेफ्ट हैंड की साइड की बात करें तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ सम डिस्टेंस. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम. नाउ यू मे आस्क दैट व्हाई इज प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट हियर जो भी फोर्स है आपका वो क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, और जो आप इवैल्यूएट कर रहे हो दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम. एंड इन फिजिक्स so many time we don't even care what is your time, because time is nothing but 0, 1, 2, 3, 4. Time is that how some interval, how some events happen in some interval. So we don't care about time too much. Now जो force जो vary कर रहा है वो force क्या time के साथ vary कर रहा है? नहीं, ये position के साथ vary कर रहा है. अगर दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, अगर मैं उसके मास को उसकी अगर सेपरेशन को मैं इंक्रीज कर दूं, मे बी यहां से यहां तक R था और मैंने यहां पे एक डिस्टेंस ले लिया, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब इसके मोशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो इज देयर एनी चेंज इन टाइम? ऑब्वियसली नॉट. व्हाट इज द चेंज इन where the change occurs? That change occurred in the position. So that is our interest, that is our main interest, to understand the forces in terms of position. So we want to understand all the things, all the events in not in terms of time but in terms of position. के in terms of position कैसे होगा? That is the main root of work energy theorem. तो work energy theorem is derived from Newton's second law. हम देखेंगे कैसे वो derive हो रहा है, but in a more elegant form. Because of this realization that जो force आपकी जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है
they are function of space, means they are function of positions, not the function of time. तो इन फोर्सेस में जो चेंज होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या चेंज हो रहा है, वो चेंजेस आ रही है इनकी पोजीशन के साथ. बट आपकी जो न्यूटन्स लॉ ने न्यूटन्स इक्वेशन है वो चेंज हो रही है इन राइट हैंड साइड विद टाइम. सो वी हैव टू फ्रेम दिस इन सच अ वे दैट वी कैन फिगर इट आउट व्हाट आर द फॉर्म, कि हम फॉर्म को कैसे बदलें कि ये मुझे जो चाहिए वो मेरे इंटरेस्ट में दे सके. तो चलिए हम ट्राई करते हैं ऐसे. तो मैं इस फंक्शन को लेता हूं f(x), मैं यहां बोलता हूं f(x) आ गया m. नाउ अब ये देखो, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को. बिकॉज यू नो टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज कंप्लीटली टीडियस वर्क. ओके, ये कोई आसान चीज नहीं होता है. फॉर वेरी सिंपल केस ये बहुत आसान होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. सो हम ट्राई करते हैं हमेशा सॉल्व करने की फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को. तो देयरफॉर मैं ये कहूंगा कि dv हो गया. अब मैं क्या करूंगा, यहां पे डिवाइड कर दूंगा dx एंड dx ओवर dt. तो अगर dx कैंसल आउट हो जाएगा तो वी हैव हैविंग dv बाई dt. सो नथिंग मोर चेंज. तो इसे हम लिख सकते हैं m dv ओवर dx and dx over dt is nothing but your velocity. Now here you can see fx. Now fx is a function of position and v is function of dv. So we can say here that f times x into dx is nothing but mv dv. और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें यहां देखने को मिलता है क्या, तो मे बी मैं ये इंटीग्रेट करूं कि when it has some initial position xi, it has initial velocity maybe u, and when it goes in final position it has some velocity v. तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, m v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स बैठाओ u एंड v. तो यहां हमें देखने को मिलेगा हाफ m, ये इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, विच इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. तो आपके पास जो फॉर्म आया fx इंटू डी एक्स फ्रॉम xi टू xf इज नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. एंड नाउ दीज टर्म्स, फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो एंड इट डिस्प्लेस और इट मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, देन इट विल प्रोड्यूस सम काइनेटिक एनर्जी. तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, यहां से लेकर यहां तक मूव किया, तो ये मेरे को क्या था, काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी मे बी एक पोजीशन आई में है और काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन एफ में है. तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है. दैट इज द डिफरेंस विल गिव यू दिस गाय एफ एक्स एंड डी एक्स. I think you may have understand what is the requirement for work energy and theorem. It has more deeper implication than Newton's second law. Although क्या ये derive हो रही है Newton's second law से ही, तो it's kind of a rearrangement of form, कोई खास नहीं है. It will not even produce different result than Newton's equation. तो हम ये कह सकते हैं इसे, this is your xi, this is your xf, fx times dx is nothing but kinetic energy at maybe f, this final kinetic energy minus potential energy, sorry, minus initial kinetic energy. Now एक ऑब्जेक्ट को वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करने के लिए जितना फोर्स लगाए, that we call is work done. तो इसे हम डिफाइन करेंगे किससे, वर्क डन से. xi, xf, now this is fx times dx. This is the work done by the force on some object. एक ऑब्जेक्ट को मुझे यहां से यहां मूव करने के लिए, I से लेकर F तक मूव करने के लिए जो फोर्स मेरा काम किया, ओके, I से F मूव करने जो फोर्स हमारा काम किया, that is give you work done. And work done is equal to the change in kinetic energy from final minus initial kinetic energy. So this is the work done. Well, that's very good, but now again for an example, चलो हम एक एग्जाम्पल इसमें करते हैं और समझते हैं
कि ये चीज ऐसे एक्चुअली है क्या। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मे बी एट सर्टेन हाइट, दैट इज h। तो ये ऑब्जेक्ट का मास m है और ये गिर रहा है, तो ग्रेविटी क्या करेगा, इस तरफ उसे पुल करेगा, और इनिशियली इसका जो वेलोसिटी था वो क्या है, u इक्वल टू 0। तो इट्स इन फ्री फॉल कंडीशन, तो f इज इक्वल टू क्या लग रहा है इस पे, mg। नाउ f इज नॉट अ पोजिशन, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर हियर, तो हम क्या करेंगे इसे, यहां सिंपली लिखेंगे xi xf। तो फोर्स डाउनवर्ड्स की तरफ लग रहा है, तो मैं यहां सिंपली लिख दूं mg, दैट इज dx इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मे बी यहां कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियली इट वाज इन रेस्ट, तुमने पकड़ा इसे छोड़ दिया, दैट इज योर 0। तो अगर मैं इसमें काम करूं mg और मैं यहां करूं xf माइनस xi इज हाफ mv स्क्वायर, तो मैं यहां क्या देखता हूं, mm कैंसल आउट। नाउ xf इस पोजीशन से दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट इज गिव्स यू द टोटल हाइट, सो मैं यहां लिख सकता हूं g इंटू h, और 2 से यहां मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, विच इज योर v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये आपने फॉर्मूला देखा है ना, किसमें देखा है आपने फॉर्मूला, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और मैंने कहा था कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो मैं यहां ले लूंगा a इज इक्वल टू g, तो यहां हो जाएगा इनिशियली अगर ये रेस्ट में था v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इट इज नथिंग बट 2g, हाउ मच इट विल ट्रेवल, सो यू नो इट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो मैंने इसलिए ये बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो आवर फोर्सेज इज अ फंक्शन ऑफ नॉट टाइम बट इट इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट, मींस इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस। नाउ अगर आपके पास फंक्शन के फोर्स क्या है, यूनिफॉर्म है, means like mg a constant है, then you will get whatever the result we have got from Newton's second law, but it will help a lot if the force is in the form of is varying with position। दूसरी बात ये चीज क्या है, इसकी एक एलिगेंट है, you know what is the elegance of this thing, ये मोर मैथमेटिकल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है। वो चीजें क्या छुपी हुई है, वो चीजें ये छुपी हुई है कि हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू m, जो पोजीशन की वजह बात करें तो हमें इसे लिखना होगा m d2x ओवर dt स्क्वायर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अगर मुझे ये सॉल्व करना पड़ा तो मेरे पास क्या था, मेरे पास दो लिमिट्स बिठानी पड़ी। लिमिट्स कैसी थी वो, अगर मेरा पोजीशन यहां xi है तो उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, और अगर मेरे पास पोजीशन xf है तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम में कितनी है। Why this elegance? Because you know this f is second order differential equation, और जब आप थोड़ी मैथमेटिक्स पढ़ोगे और जब डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में आएगा तब ये डिमांड करता है कि अगर आपको सॉल्व करना है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन यू नीड टू इनिशियल कंडीशंस। एक आपको क्या देना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशंस देना पड़ेगा, पहले आपका जो सिस्टम था वो कैसा था। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ एक चीज देना पड़ेगा, बट जैसे ही आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल आओगे तब आपको दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, नॉट जस्ट ओनली वन थिंग, यू हैव टू स्पेसिफाई टू थिंग्स, एंड दैट टू थिंग्स गिव्स यू द आइडिया दैट ओके फाइन इट नीड्स दिस टू इनिशियल थिंग, जो कि आपके न्यूटन्स इक्वेशन में, जो न्यूटन्स लॉ हम यूज कर रहे थे एफ इज इक्वल टू में जो फोर्स लगा दो, उसमें कहीं ना कहीं एब्सेंट था। ऑब्वियसली इट इज बिल्ट ऑन देयर आल्सो, बट इट गिव्स यू एन एलिगेंसी ऑफ दिस फॉर्म कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज मैथमेटिकली मोर डीपर। एंड व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन मोर मैथमेटिकल वे, बिकॉज क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को हमेशा इमेजिन नहीं कर सकते सिचुएशन कैसा होगा, बट मैथमेटिकली क्या होता है कि इफ आई हैव सम फ्रेमवर्क then I can dig deeper and deeper and deeper। अगर मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है, मुझे पता है कि ग्रेविटी कैसे काम करता है, तो मुझे पता चल जाएगा यहां बैठे बैठे कि सन के अंदर क्या हो रहा है, बट क्या मैं उसमें घुस के जा सकता हूं क्या, या उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो बहुत सारी जो एक्सोटिक चीजें हैं, एक्सोटिक फिनोमेना है, उन्हें अनलॉक करने के लिए वी नीड सम मैथमेटिक्स, वी नीड सम टूल्स, और वो टूल्स हमें क्या देता है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स करो, जहां आप पहुंच नहीं सकते हो वहां आप पहुंच जाओगे।
So that is the interesting thing why we are always formulating some deep mathematics. और फिजिक्स जब हम उसमें लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, एक वैलिडिटी बन जाती है कि हाँ यूनिवर्स में समथिंग इज हैपनिंग. आप अगर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसे करो एंड यू विल वेरीफाई दैट हाँ ऐसी चीजें हो रही है. सो दैट इज द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स. बट स्टिल जब मैंने ये दिखा दिया कि इसकी एलिगेंस क्या है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर डिफरेंट. व्हाई मोर डिफरेंट? लेट अस अंडरस्टैंड इट. Well, whatever we have discussed so far here, it is for one dimension. Okay, वर्क को मैंने क्या डिफाइन किया? वर्क को मैंने डिफाइन किया F into dx. But what happens if we are working in 2D और 3D? 2D और 3D में ये चीज कैसे काम करेगा? फोर्स इंटू dx, बिकॉज अगर यहां पे 1D का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, आप फोर्स इधर लगाओ तो ये इधर ही सिर्फ मूव करेगा. लेकिन अगर मेरा 3D है तो अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ओके, और मैं इधर से कोई फोर्स लगा दिया, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? अगर मैंने फोर्स इधर लगाया और मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट यहां मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट होगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा? दैट इज द नीडेड. दैट्स व्हाई वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी जंप टुवर्ड्स मोर डायमेंशन, दैट इज मे बी 2D और 3D. तो 3D में हम देखते हैं तब क्या होता है. तो 3D की अगर हम जब बात करते हैं तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एज यू प्रोबेबली सीन इन माय लेक्चर्स इन वेक्टर्स. तो आप वेक्टर्स को देख लें कैसे हम करते हैं. तो मे बी हम लिख सकते हैं मे बी सम कंपोनेंट इन x, सम कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन y एंड सम कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन z. उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट में हैपन लाइक फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो बहुत इन्फिनिटेसिमल हो रही है, मे बी dx वेक्टर और लेट्स से dr वेक्टर. तो ये हो जाएगा क्या, dx x हैट, dy y हैट एंड dz z हैट. तो वर्क डन में क्या लिख सकता हूं यहां पे, वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ दीज टू गाइज आर वेक्टर, और वर्क डन जो होता है वो हमें क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज वर्क डन दैट यू कैन मेजर. और जब तुम वर्क करते हो तुम ये नहीं देखते हो कि किस डायरेक्शन में, इट डजंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. तुमने यहां फोर्स लगाया, देन इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ मैग्नीट्यूड. इट डजंट केयर अबाउट दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट एंड व्हाट एल्स. एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ सम मैग्नीट्यूड. तो वो मैं क्या करूंगा, इसे मैग्नीट्यूड पाने के लिए मैं क्या करूंगा, if we have two vectors then we just do this dot product. तो जब ये dot product में जाएगा then we will get some scalar quantity and this scalar quantity is nothing but this work. Now f dot dr को अगर हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि if any quantity in like this, so we can write always f dr cos theta. Means if we have some force like here and the displacement goes like this, और इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, then it will give you f cos theta into dr. So f cos theta is f parallel towards dr, we can say it. तो जो पैरेलल फोर्स लग रही है टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वही अकाउंट में आएगा. अगर कोई सपोज मैंने कहा कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट यहां है, ओके, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मे बी n फोर्स लग रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स? और मे बी ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इस तरफ, कोई भी फोर्स की वजह से इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी में भी इस तरफ है या पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो n इंटू डी आर इज विल गिव यू 0 बिकॉज n इज नॉर्मल टू डी आर. ये फंडा है. तो जो नॉर्मल फोर्स होगा, द वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स इज completely 0 because this is a perpendicular force with this dr or with how the object is moving. So हमें लेना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है and what is the parallel component of it. तो मे बी अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां है और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है एंड आई नीड सम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बोल दिया उसने, इस तरफ होगा, तो मैं देखूंगा ये कितना एंगल बना रहा है एंड देन वी से दैट f cos theta times dr will give you this work done. I hope this is clear to you. So that is the interesting thing about this
nature. And the kinetic part, so in 3D we can write here that F dot dr in terms of vector, let's say it's Ra and it's Rb is nothing but half m v square. Okay, because vector को हम v square को हम लिख सकते हैं v vector dot v vector. Okay, now our v vector क्या, because we are in 3 dimension, so we do the scalar product of this thing. So half mv square minus half mu square. That is the definition of this thing. And this guy is nothing but your work done. So आप work done को ऐसे भी define कर सकते हो. Work done is nothing but f dot maybe some displacement. Maybe if you have some finite change, infinite, इसे कहते हैं infinitesimal change, इसे कहते हैं finite change. So f dot del s. If we have this thing, maybe dw is equal to nothing but f dot ds. These 3 forms you have to understand this thing. Okay, तो ये कहीं भी आ सकता है, बट वो चीजें वही सेम चीजें, थिंग्स विल सेम. अब हम बात करें कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी विच इज डिफाइंड एज हाफ mv स्क्वायर. नाउ यू नो व्हाट इज योर मोमेंटम. Momentum is defined as p is equal to m into v. So we can say here that okay, I can do here this thing like multiply कर देंगे हम m से ऊपर नीचे, तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो जो है वो रह जाएगा. तो यहां हम लिख सकते हैं हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m. Now you see p is equal to mv हमने डिफाइन किया, and here is m स्क्वायर v स्क्वायर, so it's nothing but p स्क्वायर ओवर 2m. So काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच इज आस्किंग दैट अगर मोमेंटम को हमने 10 to 20 कर दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा. ओके, अगर कोई वेलोसिटी में हमने कुछ इंक्रीज कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 5 to 6 क्लास प्रॉब्लम, बट यहां क्या हो गया, उन्होंने वो चेंज कर दिया, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया. नाउ दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टू मेनी थिंग्स. तो हम इस फॉर्मूले को फिर लिख सकते हैं किसमें, वी कैन राइट हियर कि पी बी स्क्वायर बाई 2m एंड मोमेंटम एट ए स्क्वायर बाई 2m. दिस इज द चेंज ऑफ शेप ऑफ दिस थिंग. तो काइनेटिक एनर्जी को हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं मोमेंटम में. देयर इज नॉट, इट्स टू डू दिस थिंग इट्स वेरी हेल्दी. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट टू मेनी थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो अब अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, कुछ और चीजें कहने का मतलब क्या है. सपोज कि आपके पास कोई ब्लॉक है, ठीक, तो ब्लॉक मैं कैसे बनाऊं, ये क्या मैंने बना दिया, मुझे भी पता नहीं मैंने क्या बनाया. मे बी ये क्या होगा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr इस तरफ होने की है. एक फोर्स, एक आदमी जो है वो बैठा हुआ यहां है, वो इस तरफ धक्का मारा. कभी कभी होता है ना कि सपोज गाड़ी जो है ना बिल्कुल मड में फंस गया, अब उसे क्या कर रहे हैं, 10 लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं. ओके, अब तुम धक्का कर रहे हो, अरे धक्का मारो, तो कोई बंदा यहां से धक्का मार रहा है, कोई यहां से धक्का मार रहा है, कोई यहां से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है. जब इतने सारे फोर्स लग रहे हैं तब बताओ वर्क डन क्या होगा. तो वर्क डन जो टोटल होगा, ऑब्वियसली वर्क डन को होना क्या है, काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चलो भाई ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन था और इसमें उस समय जो चेंज आएगा वो यहां कहीं पहुंचेगा. बट ये वर्क डन हो रहा है, यहां पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तब क्या होगा. तो हम यहां लिखेंगे कि ये बहुत सारे फोर्स लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, जितने भी जो फोर्स है उनका कोई ना कोई काम होगा. तो हम बोलेंगे मे बी देयर इज अ ith फोर्स या nth फोर्स. तो ये क्या जाएगा, जितना भी वर्क डन है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, हम क्या करेंगे, सम कर देंगे फ्रॉम 1 to जितना भी है, W1, W2, W3, W4. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है, ये I इज इक्वल टू 1. वर्क डन क्या करेगा कि जितना भी फोर्स है उन सबको सम कर दो, और वो सब मिलके तो एक ही डिस्प्लेसमेंट देगा. ऐसा तो नहीं है कि सपोज कि तुम्हें कोई कार को मूव करनी है, तुमने सिर्फ एक बार धक्का मार दे वो हो गया, ऐसा तो नहीं होता. तुम्हें वो 10-15 लोग चाहिए, तब तुम धक्का मारते हो और तुम्हारा जो कलेक्टिव फोर्स है
उसके वजह से क्या हो रही है, वो जो कार है वो आगे बढ़ रही है. सो इट इज अ कलेक्टिव फोर्स, देन इट विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो होने का वो सेम होगा. ओके, बट ये जो फोर्स है वो सब ऐड हो जाएंगे पहले, तब वो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें देगा. सो दैट इज द वे वी विल डिफाइंड. तो इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना. अब यहां कैसे हो रहा है, मे बी अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, मे बी एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, उस तरफ जाना है तो हम ये देखेंगे कि उस तरफ का कंपोनेंट कितना है, मे बी F1 का पैरेलल कंपोनेंट कितना है. सिमिलरली एक फोर्स यहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर को होना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मुझे को पता है ना कि सिर्फ इधर ही हो सकता है ये. तो ये मे बी F2 हो रहा है, तो यहां हम देखेंगे कि ये जो कितना एंगल बना रहा है, सो F2 cos थीटा इनटू dr. तो उसी तरह से हम सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करेंगे एंड देन वी विल फिगर आउट एट व्हाट इज द वर्क. तो ये जो चीज जाएगा वो तुम्हें ट्रांसलेट होगा इस चीज में भी. ओके फाइन, इंटीग्रल और देन सम कर दो i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जितना भी फोर्सेस हैं Fi, और उसके बाद अगर तुम ले रहे हो Fi समथिंग पैरेलल. पैरेलल मैंने इसलिए कर दिया कि ये जो dr है सब उसके तरफ तुम ले लो. अब कोई गाड़ी इस तरफ है, तुम यहां जाकर ढकेलोगे तो वो तो कोई काम नहीं करेगा ना. यू हैव टू समथिंग अलाइन. और जो इस तरफ है जो 180 डिग्री में पुश करेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा. जो ऐसे धक्का मारेगा तो उसकी जो कम होगी. तो मुझे वो सब चीजें लेनी पड़ेंगी, किस तरह से एंगल से किसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है. सबका कंट्रीब्यूशन सेम तो नहीं हो सकता है ना. बट जब तक सबको कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक वो गाड़ी क्या होगी, हिलेगी नहीं हिलेगी. देयरफॉर वी हैव टू ऐड ऑल द फोर्सेस. और मैंने क्या किया, ऑल द फोर्सेस क्या करोगे तुम, पैरेलल कर दो. पैरेलल किसके, दिस dr के. दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. और तुम्हें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम चीजों को फ्रेम करते हैं. और दैट विल प्रोड्यूस दिस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. दैट्स ऑल. काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज नहीं, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो. दैट्स ऑल. चलो अब हम देखते हैं कुछ और की तरफ. अगर हम यहां देखें तो हमें देखना है पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द वे ऑफ डिफाइनिंग पावर. तो पावर को ये कहा जाता है कि पावर इज तो तुमने कितना वर्क डिलीवर किया पर यूनिट टाइम में. अब हम इसकी बात करें, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर्स. तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क. और वर्क ही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मुझे दिया, तो वर्क को हम क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं. और न्यूटन मीटर को हम कहते हैं क्या, जूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसे हम, 1 जूल कह दिया. ये जो एनर्जी है उससे हम देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि न्यूटन मीटर को हमने लिख दिया 1 जूल. उसी तरह से हम इसे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट अगर डालते हो तो कितना डिस्प्लेस होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, देयर आर डिफरेंट यूनिट्स वेयर यू कैन मेजर ऑल दिस थिंग्स. ना जब हम इसकी यूनिट्स निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू कितना वर्क डन आप करते हो कितने पर यूनिट टाइम में, ये कितना वर्क आप डिलीवर करते हो पर यूनिट टाइम में. तो देयरफॉर द यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट जूल पर सेकंड और न्यूटन मीटर पर सेकंड. और इसे हम कहते हैं 1 जूल पर सेकंड को हम कहते हैं 746 हॉर्स पावर. और इसी जूल पर सेकंड को भी हम कह सकते हैं क्या, वाट कहते हैं. पावर का जो सबसे फेमस यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है. एंड 1 हॉर्स, आई एम सॉरी, और इसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं. सपोज कि तुम डायनामो खरीदने के लिए जाओ तो उसकी जो पावर लिखी भी रहती है कि ये कितने हॉर्स पावर का है. मे बी तुम कोई इंजन खरीदने जाते हो या फिर कोई बाइक खरीदने जाते हो तो वो दिखा होता है कि ये कितना हॉर्स पावर का है. ठीक है, बिकॉज हर एक इंजन की कैपेसिटी होती है पावर जनरेट करने की. मोर पावर जनरेट करेगा तुम्हें मोर एनर्जी मिलेगी. ठीक है, ये कम टाइम में कितना ज्यादा हॉर्स पावर का लोगे तभी वो उतना पावर जनरेट कर पाएगा. देन यू विल गेट दिस एक्सेलरेशन एंड सो ऑन. तो ये होता है 1 हॉर्स पावर इज नथिंग बट 746 वाट. तो तुम बोलोगे तुम्हारी गाड़ी कितनी हॉर्स पावर की है, बोलोगे यार मेरी गाड़ी 200 हॉर्स पावर की है. मीन्स 200 से मल्टीप्लाई कर दे, इतना वाट या इतना जूल पर सेकंड तुम्हारे इंजन क्या करती, वर्क को डिलीवर करने की क्षमता रखती है.